विरोध प्रदर्शन की यह तस्वीरें चंडीगढ़ की है, जहां बीते दिनों पंजाब के मुख्य विपक्षी दल जिसमें कि भाजपा, कांग्रेस और अकाली दल के नेता चंडीगढ़ की सड़कों पर उतरे और सीएम आवास का घेराव किया। दरअसल जो ये पूरा मामला है अमृतसर में पंजाब वेयर हाउस कॉरपोरेशन के जिला मैनेजर गगनदीप सिंह रंधावा के आत्महत्या से जुड़ा हुआ है और इसे लेकर पंजाब में राजनीतिक सरगर्मी काफी बढ़ गई है। आम आदमी पार्टी के पूर्व मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सभी विपक्षी दलों ने रविवार को चंडीगढ़ में पंजाब सीएम ऑफिस का घेराव किया। शिरोमणि अकाली दल, भाजपा और कांग्रेस के नेता व कार्यकर्ता मुख्यमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए। इनको रोकने के लिए चंडीगढ़ पुलिस ने मोर्चा संभाला हुआ था और आपको बता दें कि यहाँ पर बैरिकेडिंग भी की गई थी। जैसे ही प्रदर्शनकारी आगे बढ़ने लगे तो पुलिस ने उन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। प्रदर्शनकारियों ने पंजाब सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। तो वहीं पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष राजा वड़िंग ने इस पूरे प्रकरण पर सवाल खड़े करते हुए कहा है कि एफआईआर तो बहुत पहले ही दर्ज हो जानी चाहिए थी और परिवार को न्याय समय पर मिल जाना चाहिए था। इकट्ठे दा प्रदर्शन हैगा, इस तो बाद फैसला लेने की कार्रवाइयां होनी चाहिए। बड़े लेट एफआईआर दर्ज हुई है, ਜਿਹੜੀ कि समय सिर पहला हो जाती तो चंगा। तो वहीं पंजाब के एक और नेता ने पंजाब की सरकार पर सवाल खड़े करते हुए कहा है कि जिस तरीके से ये पूरा मामला उजागर हुआ है और एक सरकारी अधिकारी पढ़ा लिखा था, उस पर जिस तरीके से मंत्री ने अपनी तानाशाही करने की कोशिश की और अपना करप्शन के कार्य जो है उस पर थोपने का कार्य किया है, उस मामले पर एफआईआर दर्ज हो जानी चाहिए थी। लेकिन इनका जो जुल्मों का बांध है वो अब टूट चुका है। पंजाब ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਬੰਨੇ ਟੱਪ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਤਿਆਚਾਰ, ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ, ਵੱਡਾ ਪਾਪ, ਵੱਡਾ ਘਿਨਾਉਣਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹਾਈਲੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਨਿੱਜੀ ਲਾਲਚ ਵਾਸਤੇ, ਆਪ ਟੈਂਡਰ ਹਥਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਟੌਰਚਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਦੀਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਵਿਚਾਰਾ ਹਫਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਧਰ ਲੁਕਾ ਕੇ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਜਾਨ ਬਚਾਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਲਿਖਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਤੇ ਬੇਵਸ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਉਹਨੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਭਿਅੰਕਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਲੋਕੀ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਦੇ ਦੇਖੇ ਆ, ਪਰ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਐਡਾ ਹਾਈਲੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਅਫਸਰ ਬੱਚੇ ਲੁਕਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮਰਵਾ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਰਵਾ ਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਕੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਡਾਕਟਰ ਗਗਨਦੀਪ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਵੀ ਨਾਲ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ? ਉਹ ਬੈਠੇ ਆ ਸ਼ਰੇਆਮ, ਜਿਹਦਾ ਗੁਨਾਹ ਆ, ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਐਫਆਈਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਐਫਆਈਆਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਲਓ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਉਹ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਉਹਦੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਉਹਦੇ ਪੀਏ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਇਹਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕੌਣ ਭੇਜੇਗਾ? ਜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਓ, ਵੇਖੋ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵਿੱਚ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਆ ਟੀਚਰ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਮੰਨ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੰਮ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇ। ਅੱਗੇ ਕਿੰਨੇ ਸੰਸਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲੇ ਦੇ ਕੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਕਰਾਤੇ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਦਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦਿਓ। अकाली दल की अगली रणनीति क्या रहने वाली है? नहीं, ये किसी एक पार्टी का नहीं है। अज सारिया पार्टियां इत्थे इकट्ठियां, ये इंसाफ की गल है, पार्टियां की गल नहीं। कल भी उत्थे थाणे दे विच सारे असीं इकट्ठे बैठे सी ते उत्थे जिहड़ी है रात 2:30 बज गए। फिर जाके जिहड़ी एफआईआर अपने आप घर जाके लिखनी चाहिए सी।
ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ 2:30 ਵੱਜ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਮਜਬੂਰੀ ਨਾਲ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੋਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 2-4 ਦਿਨ 'ਚ ਗੱਲ ਠੰਡੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਮ ਐਤਕੀ ਚੱਲਣਾ। तो वहीं पंजाब भाजपा के प्रधान सुनील जाखड़ ने कहा कि विरोधी पार्टी के दबाव के कारण लालजीत सिंह भुल्लर के खिलाफ केस दर्ज किया गया है और सरकार की नीयत में खोट है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो डीएम की मौत के तुरंत बाद ही भुल्लर के खिलाफ केस दर्ज हो जाना चाहिए था, जो कि रात को दर्ज किया गया। गिरफ्तारी साहब, ये जो पर्चा दिया है, पर्चे की जगह गिरफ्तारी होनी चाहिए थी। अब तक आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ कि एक क्रिमिनल और मर्डर, ये कोई सुसाइड नहीं है, ये मजबूर किया गया, इसे कल्पेबल होमिसाइड मर्डर हुआ है। उसकी इंक्वायरी चीफ सेक्रेटरी से आज तक हमने तो सुनी नहीं। इन्वेस्टिगेशन पुलिस करती है। गिरफ्तार करके जो 3 उसमें अनपछाते जिसको बोलते हैं, अननोन जो उस पर्ची के अंदर नाम है, उनके लिए इनका रिमांड लिया जाए। इनको गिरफ्तार करके रिमांड करके उनकी नौकरी किया जाए। बिल्कुल साफ, सरकार के ऊपर किसी को भरोसा नहीं है, इस पुलिस के ऊपर भरोसा नहीं है। इनके कितने मंत्री पकड़े गए, कितने मंत्रियों को क्लीन चिट रैली, खुद केजरीवाल साहब एक क्लीन चिट लिए घूम रहे हैं। लोगों को पता है ये कट्टर बेईमान सरकार है, कट्टर अहंकारी सरकार है और कट्टर बेशर्म सरकार है। क्योंकि भगवंत मान कल उस परिवार के साथ उनका दुख साझा करने की बजाय वहाँ पे एक गाने बजाने का शो देखने, सिकंदर सरताज सिकंदर का शो देखने के लिए वहाँ अमृतसर में घूम रहे हैं। उस परिवार के साथी हमारे साथ खड़े हैं, जिनके परिवार का एक जीव चला गया। ये सरकार की बेशर्मी की हद है, अहंकार का हद है। भगवंत मान कहते हैं जो विरोधी दल के इनको कुछ नहीं मिलता तो सिर्फ इकट्ठे मिलकर मेरे को सिर्फ गालियां निकालते हैं और कुछ नहीं आता इनको। साहब लोग तो आरती उतारेंगे, किस किस्म की आरती उतारनी आपको पता है, कई 2 किस्म की आरती होती हैं। जब लोगों में जाएंगे भगवंत मान जी तब पता लगेगा। सरकारी तामझाम छोड़ दें, पुलिस दस्ते लाके ना चलें, इनकी आरती भी उतारी जाएगी। सारे आम आदमी पार्टी, ये मैं कहता हूँ, ये इज नॉट ए कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स, इज ए गैंग ऑफ मिनिस्टर्स। ये भगवंत मान जी का गिरोह है, जिन्होंने इलाके बांट रखे हैं और लूट ये सारे किए जा रहे हैं। आज जिस तरीके से तीनों पार्टियां इकट्ठी हुई है, पंजाब पुलिस पे लगातार कई तरह के सवाल उठते हैं। इस केस में भी कुछ खास देखने को नहीं मिला। आप क्या देखिए, पंजाब पुलिस का और एडमिनिस्ट्रेशन का दिवाला तो उस दिन निकल गया था जब वो मौका वहाँ पे किली चला में जाके स्टेज के ऊपर चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी जाके एक पॉलिटिकल मंच के ऊपर, राजनीतिक मंच के ऊपर जाके भाषण कर रहे हैं। सरकार का भी दिवाला उस दिन निकल गया कि सरकार को जमानती देने पड़ रहे हैं अपने ऑफिसर भी, इनकी बात मान के हमें माफ़ कर दो। तो आप देख लीजिए पंजाब किस तरफ जा रहे हैं। ये एक बॉर्डर स्टेट है जिसके ऊपर पड़ोसी मुल्कों की आंख बड़ी काफ़ी अरसे से। ऐसा एक माहौल यहाँ पे गलत क्रिएट किया जा रहा है। इज़ अ ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर व्हाट इज़ हैपनिंग। पंजाब हैज़ गॉन थ्रू दोज डार्क डेज, वी डोंट वांट टू हैव दैट रिपीटेड। इसलिए सारे इकट्ठे आज इस सरकार से पीछा छुड़ाने के लिए आए हैं, लोगों को आगाह करने के लिए आए हैं, उनकी आवाज़ लेके यहाँ पे हम खड़े हैं। थैंक यू। वहीं मृतक गगनदीप सिंह रंधावा की पत्नी उपिंदर कौर का यह कहना है कि परिवहन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने उनके पति को प्रताड़ित किया है। उनके पति को इतना बेबस कर दिया गया कि उन्होंने अपनी जान ले ली है। उनकी पत्नी का यह आरोप है कि उनके परिवार, उनके बच्चों को खत्म कर दिया जाएगा और उसके पीछे गैंगस्टर लगा दिए जाएंगे। 13 मार्च को उनके दफ्तर में बहुत प्रताड़ित किया गया और शनिवार की सुबह उन्होंने अपनी जान ही ले ली। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर परिवार अड़ा हुआ है और उनका कहना है कि जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक पोस्टमार्टम और अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा और परिवार ने जो है न्याय की मांग की। न्यूज़म के लिए चंडीगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट।